પણ આજે આપણે વિનીતભાઈ અહીંયા આવ્યા છે ખૂબ જ સરસનો સાથે લઈને આપણે પૂરેપૂરો એમનો લાભ લેવો છે. વધારે કે વાત નથી કરવી, આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ કે એમનો સાથે શેર કરે. સજ્જન સર. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં, દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા. હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની શુને હાસ્ય મુકે વસ્યું. હે શ્રી જ્ઞાન જીઓ ગિરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવશું. બોલે બોલ અમોલ શબ્દ મધુરા સાક્ષાત સુધા તો જરે. એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ વિભુને સ્નેહે નમી સૌતરે. સભામાં આવેલા સૌ ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. આ ટોપિક જે છે વાણી વર્તન અને વિવેક, આ ટોપિકનો જે મહિમા છે એ આપણા વચનામૃતમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રથમ 16 અને પ્રથમ 18માં લખેલું છે. પ્રથમ 16 એટલે આપણો અંતઃકરણનો વિવેક અને પ્રથમ 18 એટલે આપણા ઇન્દ્રિયનો વિવેક. જે આપણે 5 ઇન્દ્રિય છે, 5 સેન્સીસ, આંખ, કાન, નાક, જીભ, મોઢું. એ રીતે આપણે જે વાણી વર્તન અને વિવેક આપણને સમજવા માટે તો સૌથી પહેલાં તો ભગવાને આપણે ખૂબ આભારી રાખવા જોઈએ કે આપણે એમને પોતાનું જીવન એવું જીવ્યું. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ પોતે ઘણી તકલીફો અને ઘણો બેડો લીધો આપણા માટે, આપણા સૌ ભક્તો માટે. એક વખત સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે આનંદની ધરતી પર આવતા હોય છે, આનંદની ધરતી પર આવતા હોય છે એમના ભક્તો સાથે. તો ત્યાંના અમુક લોકો છે ને તે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અગેન્સ્ટમાં હોય છે, અપક્ષમાં હોય છે. એ લોકો માનતા નથી હોતા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને. તો જેવા આનંદની ધરતી પર પહેલી વાર આવતા હોય છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, તો ત્યાંના લોકો છે ને પથરાવ કરે છે, ગાયનું છાણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના મોઢા પર મારે. તો બધા લોકો ગુસ્સે થઈ જાય, આપણા સ્વામિનારાયણના ભક્તો પણ ગુસ્સે થઈ જાય. અને પણ ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે ને મોઢા પર આંગળી કરી દે છે કે આપણે કંઈ એમના સામે રિએક્શન નહીં આપવાનું, આપણે એનો મારવાનો. આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાન શીખવાડે છે કે આપણે કોઈને મારવાનો અધિકાર નથી, આપણે હિંસા નહીં કરવી ક્યારે. આ વસ્તુ થાય છે, પથરાવ થાય છે, બધાને ખૂબ મારે છે બધા. અને છતાં પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એના રિએક્શનમાં જવાબ નથી આપતા. થોડો વખત જાય છે, ત્યાંના લોકોને એ વસ્તુનો ગુણ આવે કે આટલું બધું થઈ ગયું છતાં પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને આનો કંઈ જવાબ ન આપ્યો. તો એમણે કેટલી સહનશક્તિ છે, અને જેના અંદર સહનશક્તિ હોય ને એ ભગવાન કહી શકાય. ત્યારે એ લોકોને વાત સમજ પડી. કારણ કે માનવ છે ને, માનવમાં સહનશક્તિ ન હોય. માનવને એક મારો તો એ 4 મારે સામે, માનવને એક મારો તો 4 મારે સામે. પણ ભગવાનના અંદર એ સહનશક્તિ છે કે એ આટલું સહન કરી શકે. બાકી આપણા પર છાણ તો છોડો, કોઈ થોપીને પણ જાય ને તો આપણે એને બરાબર લઈ લઈએ. ત્યારે બધા અકેલે મીલ બાત નીચે બધી ખાતા હતા, બરાબર. बदलो लेवानी भावना हो, रिवेंज करने की भावना रहती है हमारे अंदर, बराबर. तो स्वामीनारायण भगवान लेकिन हमको क्या सिखाते हैं? स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं कि हमारे ये संप्रदाय के अंदर कोई हमें मारता है या कोई हिंसा करता है तो हमें उनके सामने हिंसा नहीं करनी, हमको उनके जैसा नहीं बनना है. ये उसने क्या किया उसके जैसा हमें नहीं बनना है, ऐसा. तो स्वामीनारायण भगवान का हमको गुण आता है. और वो लोग फिर बाद में सत्संग करना शुरू करते हैं आनंद की धरती पे. और धीरे धीरे वो लोग भी सभा सत्संग करने वाले, आपघात भी, मतलब आत्महत्या भी कर सकते हैं. अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप लाइव प्रसंग सुनोगे तो आपको मालूम पड़े कि वाणी से लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं. ऐसे ही जगह पे गांव में लव्या करके एक व्यक्ति था, लव्या. उसका वो एक बार ना उसके वाइफ को उसने बोला कि मेरे को ना बैंगन का भाजी बहुत पसंद है, बैंगन का भाजी. आज मैं काम पे से आएगा ना, खेत में से आएगा काम करके, मेरे लिए बैंगन का भाजी बना. हाँ, तो जाता है, काम से आता है, एकदम उमंग में रहता है, एकदम मतलब जोश में, एकदम खुश रहता है. या तो बैंगन का भाजी मस्त खाने मिलेगा, बैंगन का भरता मिलेगा. तो आता है तो उसका वाइफ जो है वो दाल रोटी इसको देती खाने को. बोलते ये क्या खाने में? तेरे को बोला था बैंगन का भरता बनाने को. बोलती है दाल पड़ी थी तो मैं चपाती बना दिया. मैं बोला बैंगन का भरता कल खा लेते. अरे आऊ जमवानो बनावा करता तो एना करता कुआं में घुसको मारती हो तो. ऐसा उसने बोल दिया कि ये बैंगन का भरता बोला था तेरे को बनाने को, तेरे को समझ नहीं है क्या? ये क्या दाल रोटी बना दिया, जाके कुएं में कूद के मर जा, ऐसा. तो ऐसा होता है कि इतना उसको जो बोला ना, तो उसको इतना, उसका वाइफ को इतना गुस्सा आ गया, कि पत्नी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने सचमुच में कुएं में जंप मार के मर गई. अभी ऐसा होता है कि 12 साल तक उसकी शादी नहीं होती है, 12 साल तक उसकी शादी नहीं होती है. और 12 साल के बाद उसकी शादी होती है, तभी जाके बैंगन का भरता बनता है. तब उसको खाने में बैंगन का भरता बनता है. तो मंदिर में जाते लव्या को लेके, महाराज को मिलाते,
બોલ મહારાજ વાત કરતે કે અલા લવ્યા એ વખતે તે વાણીમાં સંયમ રાખ્યો તો એ બીજે દિવસે તને બેંગણનો રંગ રીંગણાનો ભરતો પડી ગયા था जमवा है बैंगन का भरता मिल गया होता दूसरे दिन तेरे को 12 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता ऐसा तो फिर वाणी में संयम नहीं रखा तो उसको कितना तकलीफ हो, उसके ऊपर पाप भी चढ़ा ऐसा गलत बोलने का, और उसको बैंगन का भरते के लिए इंतजार भी करना पड़ा 12 साल। ये कैसा हो गया। उसके बाद एक प्रसंग ऐसा है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है सत्संग में आने से। जैसे कि पहले तो स्वामी जी का ही प्रसंग बताता हूँ। स्वामी जी का, हरिप्रसाद स्वामी जी जो है हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो एक बार कोई हरि भगत के यहाँ पे जाते, वहाँ पे थाल रहता है, तो वहाँ पे खाने में सबको दूध पाक देते, सबको खीर देते, और स्वामी जी को कड़ी देते खाने में। अभी ऐसा ही अभी समझो अपने सत्संग में हो कि सबको चोकोबार दे और अपने को पानी का गिलास दे दो क्या होगा, गुस्सा आएगा ना, अरे क्या हार्दिक भाई यार तुम अपना खास है, सबको चोकोबार मेरे को खाली पानी का गिलास दे दिया। लेकिन स्वामी जी कैसे, अपने स्वामी जी बोलता है ओहो भगत तो भाग्यशाળી, મને તો શું અદ્ભુત ભક્તિ, તમારી ભક્તિ છે કેટલી કે મને કડી દેવા મળી આટલી સરસ મજાની। स्वामी जी उसके गुण लेते कि आप કેટલી સરસ है कि कड़ी बनाई, इतना अच्छा कड़ी बनाया है, पीने को मिला मेरे को अच्छा इतना। तो स्वामी जी ने किसी में से माइनस पॉइंट नहीं निकाला कि ये सबको ऐसा दिया और मेरे को ऐसा स्वामी जी कभी नहीं बोले। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था मंदिर में, एक बहन जी जो है वो स्वामी जी की परीक्षा लेने के लिए मिर्ची का लड्डू, लाल मिर्च पाउडर होता है ना, उसका लड्डू बना के लाती कि स्वामी जी खाली ऐसे ही प्रवचन देते कि आज उसकी परीक्षा लेके देखती हूँ। तो मिर्ची का लड्डू बना के लाती है और हरिप्रसाद स्वामी जी जो है लेफ्ट साइड में उसको वो लड्डू देती है। तो स्वामी लड्डू खा के आँख में से आंसू निकलता है, इतना तीखा रहता है लड्डू, आँख में से आंसू निकलता है। फिर भी स्वामी जी क्या बोलते हैं, તમારી ભક્તિ ખૂબ તમારી સરસ ભક્તિ કહેવાય એ તમે મને પ્રસાદ જમાડ્યો આટલો સરસ મજાનો। तो स्वामी ने ऐसा नहीं बोला कि मिर्ची का लड्डू बनाया, आपको समझता नहीं है, हम तो ऐसा बोलते थे, बराबर हम मनुष्य भाव थे, हमको तो तुरंत बोलते थे ये कोई लड्डू ऐसा बनाता है क्या मिर्ची का पाउडर का। लेकिन स्वामी जी क्या बोले, वो हमारी तो अद्भुत भक्ति कहेवाय, आटलो सरस मजानो लाडવો बनाव्યો मारा माटे स्वामी जी ने। तो एक और प्रसंग स्वामी जी का बोलता हूँ। ऐसा होता है कि स्वामी जी तालाब की तरफ खड़े होते, स्वामी जी उसके मित्रों के साथ में तालाब की तरफ खड़े होते। तो एक उसका मित्र है ना थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है, थोड़ा मजाकिया टाइप का। तो स्वामी जी को है ना धक्का मार देते, स्वामी जी को स्विमिंग भी नहीं आता है, अपने हरिप्रसाद स्वामी को स्विमिंग नहीं आता था उस वक्त, तो उसको जरा धक्का मार दिया। अभी हम होते तो क्या करते थे, अभी हमको स्विमिंग आता ही नहीं है, तालाब का तो गहराई अपने को पता नहीं, बराबर तालाब का गहराई भी अपने को पता नहीं कितना गहरा रहेगा। और समझो हम लोग का शादी हो गया है, हमारा बीवी बच्चे है, हम लोग क्या सोचेंगे पहले तो कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा कौन, मतलब इनको कौन संभालेगा, बराबर। स्वामी जी के तो हम इतने सारे युवक हैं, सब हम उनके लड़के हैं, बराबर है, तो उनको कुछ हो जाएगा तो हमारे पीछे कौन। लेकिन स्वामी जी ने क्या रिप्लाई किया, वो बात समझने लायक है अभी आज, कि उसके फ्रेंड ने उसको धक्का मारा ना स्वामी जी को, तो स्वामी तैर के बाहर आए कैसे कैसे करके, और बाहर आके उसके मित्र को क्या जवाब दिया मालूम है, उसने अपने मित्र को ये जवाब दिया कि आज तूने मुझे धक्का मारा ना तो मैं तैरना सीख पाया, तो मैं तैरना सीख पाया। ऐसे ही अपने जीवन में कोई दुख आता है ना, अपने जीवन में कोई दुख आता है तो ये मानना कि स्वामी जी ने हमारे जीवन में प्रसंग रखा है, प्रसंग और कोई रख नहीं सकता है, और वो प्रसंग भी कुछ अच्छे के लिए रखते हैं स्वामी जी, बराबर है। तो ये समझने का कि स्वामी जी ने मुझे धक्का मारा तो मैं तैरना सीखा, हमको कुछ सिखाना चाहते होगे तो ही हमको धक्का मारते स्वामी जी, बाकी स्वामी जी को किसी से कोई अहित नहीं है, कोई अपने दुश्मन नहीं है, बराबर। इसके बाद एक प्रसंग ऐसा है कि ये ऐसा सत्संग भरते हुए ना, मेरे को सत्संग में लाने वाले जिमित भाई देसाई मीरावड़ के, वो और सुंदर भाई दो जन मेरे को ऐसा रास्ते में मिल गए थे सत्संग में जाने को। तो उन्होंने बोला कि आप स्वामी एक जगह सभा आई है तो आप आना ना ऐसा सत्संग में, तो आओगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और पता नहीं बहुत सारे लोग को मैंने देखा हूँ, बोले अप्रोच करता हूँ तो भाग जाते हैं, या तो दूसरी बार दिखेगी तो दिखेंगे नहीं, गायब हो जाएगी, दूर से देख के भाग जाएंगे। लेकिन मुझे तो पता नहीं स्वामी ने ऐसा क्या मतलब थॉट दिया था, मुझे बोला और मैं तुरंत गया। लेकिन आज वो उनके साथ में जाने का फ़ायदा इतना हुआ है कि आज मेरा ही मन जानता है कि मेरा में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये मेरा में जब मैं रहता था ना तो एक दिन ऐसा जाता नहीं था जिस दिन मैं झगड़ा ना किया हो। मेरा मम्मी परेशान हो गया था कि इस दिन झगड़ा करके ना आए। हाँ, तो एक समय ऐसा था, और आज के समय में झगड़ा करने के लिए मेरे को ताकत मांगनी पड़ती स्वामी जी के, मेरे को गुस्सा दिलाओ, गुस्सा ही नहीं आता है मेरे को ऐसा। तो ऐसा था कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना आया कि जिमित भाई के एक बार ऐसा हुआ कि उनको बैंगन का भाजी पसंद नहीं आया, उनको बैंगन का भाजी पसंद नहीं आया। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी ने ऐसा बैंगन का भाजी बनाया खाने में, तो आया खा उसने खुशी खुशी खाया बैंगन का भाजी। सब लोग आश्चर्य हो गए घर वाले कि बैंगन का भाजी खा रहा है वो भी उमंग में।
और दो बेटा और दो, 1 घंटा बाद और खाने का। तो उसका मम्मी नितिन भाई को फोन घुमाया, हमारा मीरा भाई के लीडर है नितिन भाई, ये ऐसा क्या जादू का छड़ी घुमा दिया इसके ऊपर, क्या बैंगन का भाजी खाने लगा उमंग में एकदम। तो ऐसा तो ये उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि हमारे सत्संग में सिखाया है कि हमारे जो खाने में जो भी आता है ना वो अन्न के देवता है, अन्न का कभी अपमान नहीं करने का। जो हमारे थाल में हमको जो खाना परोसा गया है उसमें स्वामी जी साक्षात है, उसका कभी अपमान नहीं करने का, जो जो मिला हमको स्वीकार सहजता से करने का। तो वो एक प्रसंग था। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जिमित भाई का जैसे गुण आया वैसे ऐसे काफ़ी मैंने हरिभगत में जैसे जिमित भाई का प्रसंग सुना, जिमित भाई का लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन सुना, ऐसे बहुत से लोग के जीवन में प्रसंग बना कि जो करते थे गलत चीज वो बाद में धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आया, बराबर है। तो वाणी और बर्तन से क्या होता है फायदा आपको आगे योगी बाबा के प्रसंग से हम समझेंगे कि एक हरिभगत था, उसने ना चोरी किया था। अब हुआ है बात ऐसा कि उसने चोरी किया ना तो उसको जेल में कस्टडी में लॉकअप में डाल दिया और 8 दिन पुलिस ने उसको खूब मारा ऐसा कि तू झूठ बोल रहा है, तू चोरी किया ही है। वो मानने को ही तैयार नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करने का। 8 दिन ऐसा मारा। उसके बाद किसी को पता चला कि अपना हरिभगत जो है वो जेल में है। तो योगी बाबा को एक प्रसंग बताया गया कि अपना हरिभगत है जेल में, उसको बहुत पुलिस मार रही है, आप जल्दी से आओ स्वामी, अपना हरिभगत को तो कितना नहीं पहुँचना चाहिए। तो योगी बाबा आते वहाँ पे कस्टडी में और पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते कि हमारे हरिभगत जो है उससे हमको मिलना है। तो हरिभगत को लॉकअप से 2 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद हरिभगत को स्वामी जी प्रेम करते, हेत करते, उसको सर पे हाथ घुमाते, पानी पिलाते, लड्डू पिलाते, उसको बस साथ में सहजता से हंसते हुए पूछते कि स्वामी जी आपने साचे में चोरी करी है, मतलब सच में चोरी किया है? तो फिर हरिभगत हाँ बोलते हैं, हाँ स्वामी महाराज जी चोरी की है, महाराज मेरे से चोरी हो गई। तो जो आजू बाजू के जो पुलिस वाले होते हैं ना वो शॉक हो जाते हैं कि हमने इसको 8 दिन 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसको इतना मार मारा तभी ये कभी बोला नहीं कि मैंने चोरी किया है, बराबर है। लेकिन स्वामी जी ने क्या ऐसा किया, स्वामी जी ने प्रेम दिखाया, अपना प्रेम का विवेक बताया कि प्रेम में कितनी ताकत है। उसके बाद स्वामी जी उसको बोलते हरिभगत को कि भगत आपकी આપણે છે ને હા બધી વસ્તુ છોડી દેવાની છે। उसको हाथ में पानी देते और पानी जमीन पे छोड़ते वक्त बोलते कि ये वचन लेने का છે कि दारू માંસ ચોરી જુગાર આટલી વસ્તુ આપણે જીવનમાં આવે ત્યારે આ પાછી આવી ન જોઈએ અને આપણે સભા સત્સંગ કરતા થઈ જવાનું છે, अपने को सभा सत्संग करना है। तो उसको ऐसा ये बोलते कंठी पहनाते और कंठी पहनाते और बाद में वो भगत जो है वो ये सब चीज़ छोड़ देता है, धीरे धीरे सत्संग करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वो साधु बनता है। और उसके जीवन में क्या था कि योगी बाबा ने उसको प्रेम दिखाया। उसके जीवन में एक ही चीज़ था कि सत्य। उसने सत्संग से क्या सीखा, सत्य सीखा और अच्छों का संग किया। उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, सत्संग, सत्य का संग। और जीवन में क्या बोला उसने, सत्य बोला। तो योगी बाबा उससे खुश हुए और उसने छोड़ने का वचन लिया कि ये चीज़ जो है मैं दोबारा नहीं करूँगा, बराबर। तो स्वामी जी ने, योगी बाबा ने ऐसा प्रेम का विवेक दिखाया और भगत ने क्या दिखाया, सत्य का प्रेम दिखाया। सत्य का प्रेम करेंगे तो स्वामी जी हमसे खुश होते हैं। उसके बाद एक वाणी का प्रसंग है कि वाणी से क्या हो सकता है। जो अपना भगवत गीता लिखा गया है, भगवत गीता किस आधार पर लिखा गया है, महाभारत के आधार पर लिखा गया है, बराबर है। लेकिन महाभारत किस बात पे होता है मालूम है, 3 वर्ड की वजह से होता है। 3 वर्ड के ऊपर महाभारत हुआ था कि अंधे का बेटा अंधा। जो दुर्योधन होता है, सब जानते हैं कि दुर्योधन कितना शूरवीर था, अगर वो चाहे तो अमर हो सकता था, बराबर है। लेकिन दुर्योधन रास्ते से जाता होता है और भीम हंसता है। क्या होता है, किस्सा होता है ऐसा कि दुर्योधन रास्ते जाता है और भीम हंस देता है कि गिर जाता है ना, तो वो बोलता है अंधे का लड़का अंधा, दिखाई नहीं देता है क्या खड्डा है रास्ते में, बराबर। तो हंसता है ना तो उसको अपमानजनक लगता है। और वो अंधे का बेटा अंधा थे, उसके पिता जो थे ना वो अंधे थे, भीष्म पिता। और गांधारी माता उसको देख के, गांधारी माता भी आंख में पट्टी बांधती है कि मेरे पति परमेश्वर अगर ये दुनिया नहीं देख सकते तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। तो ये इनडायरेक्टली उनके माँ बाप का अपमान हुआ कि मेरे माँ बाप को भी अंधा बोला और मुझे भी अंधा बोला। तो उसके पिताजी अंधे थे, उसके माता ने भी आंख में पट्टी बांधा कि मेरे पिता जो मेरे पति परमेश्वर अगर दुनिया नहीं देख सकते तो मैं भी दुनिया नहीं देख सकती। तो ये इनडायरेक्टली उसका अपमान हो गया सबका। इसके लिए गुस्सा उसको आता है और ये पूरा महाभारत पूरा क्रिएट होता है। 100 कौरव उनके साथ में पांडवों के साथ लड़ते, अगर चाहते तो 100 कौरव पांडवों का हरा सकते थे, क्योंकि 100 कौरवों के सामने 5 पांडव कुछ भी नहीं थे, बराबर है। लेकिन क्यों जीत पाए 5 पांडव, एक ही वजह से कि उसके पीछे जो थे वो भगवान श्री कृष्ण की ताकत थी, बराबर है। वैसे ही हमारे जो है ये प्रबोध स्वामी महाराज है, इनकी ताकत की वजह से आज हमारे जीवन में जो प्रसंग बनते हैं उसमें से हम पार हो पाते। हमारे सत्संग में कहा गया है कि काल कर्म माया के बंधन पल भर में छूट जाएगी।
बराबर है। कालीनाथ का काला विष प्राण नहीं ले पाएगी, विषय वासना तलने से जीव ब्रह्म रूप हो जाएगी। ये 3 लाइन जो बताई गई है ये सत्संग के आधार पर बताई गई है। जो धुन हम लोग गाते हैं, हमारे प्रसंग जब जीवन में प्रसंग बनते हैं, जब हम लोग धुन करते हैं तो वो धुन में साक्षात महाराज होते हैं। तो महाराज हमारा जो भी प्रार्थना होता है वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फोटो है, ये कभी मत समझना ये सिर्फ फोटो है। बहुत लोग सोचते हैं खाली फोटो है, इसमें क्या महाराज सुनते होंगे, लेकिन ये अपनी अनिष्ठा है। अगर हमारी निष्ठा होगी ना तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो बैठे ना ये प्रभु स्वामी महाराज है, ये साक्षात सुनते हैं। कभी कभी किसको होता है हरिभगत को कि मुझे 1-to-1 स्वामी जी के दर्शन करना है, लेकिन हम 1-to-1 दर्शन रोज करते हैं। हमें जिसकी के घर पे कैलेंडर है, हम लोग महाराज को देखते ना, वो 1-to-1 दर्शन ही है। ये अगर आप मानोगे ना कि ये महाराज है, ये लाइव है, तो आप मानोगे अगर तो सही में वो सुनते हैं। महाराज को ये भी पता है, उनसे भी जब जगह पे बैठे रहेंगे ना, महाराज को ये सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे भी प्रसंग बने हैं कि महाराज एक बार एक हरिभगत होता है, वो बाथरूम में बैठ के सिगरेट पी रहा था और उसको वहाँ से स्वामी जी का फोन आया। स्वामी जी का फोन आया कि बेटा આપણે છે ને હવે કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે, હવે તારે આજે હજી પીવી હોય તો પી લેજે છેલ્લી સિગરેટ, એ પાછી તારી જીવનની છેલ્લી સિગરેટ હશે। महाराज ने ये प्रसंग बताया था। ये प्रसंग हुआ है कांदीवली मंदिर में, निष्काम भाई ने खुद ने अपने प्रसंग में बताया था। वो प्रसंग सुनते ही वो एकदम शॉक हो गए और जाके उसने रिपोर्ट निकलवाया तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो तार जो होता है वो तार इतना जमा हो गया था। और डॉक्टर भी शॉक हो गया था कि ये बात तो सत्य है कि अभी तो और 3-4 दिन सिगरेट पिएगा ना तो तेरी मृत्यु निश्चित थी। तो महाराज को लंदन की धरती पे भी रहेगा ना तो इंडिया में क्या कर रहा है वो मालूम है। महाराज को सब पता है हम क्या करते हैं, तो हमें अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना ये महाराज को सब पता है। एक बार हम इसके योग में आ गए ना तो महाराज को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे एक प्रसंग है महाराज के, लेकिन किसी को सुधारने की अपेक्षा नहीं रखते कि तुम सुधरो, लेकिन महाराज ये चाहते हैं कि अपना हरिभगत जो है ना वो पीड़ा ना, उसको पीड़ा ना हो हमारे से, ये महाराज चाहते हैं। ऐसे एक भक्त था, वो नया भक्त रहता है, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है स्वामीनारायण भगवान का। तो है ना सिगरेट पीते पीते मंदिर में आता है, प्रवेश करता है, सिगरेट पीते पीते प्रवेश करता है। तो अपने हरिप्रसाद स्वामी जी है ना वो बोलते कि बेटा તમે દર્શન કરો છો ને તો એક લાવો ને તમારું 1 સેકન્ડ માટે સિગરેટ મને આપી દો તો તમે દર્શન કરી શકો। તમે બીડી સિગરેટ જે સિગરેટ છે એ પકડી લો, तो सिगरेट पकड़ लेते आप शांति से दर्शन कर लो, आप शांति से दर्शन कर लो। तो महाराज क्या इसमें बता रहे हैं अपने को, उनका विवेक कितना है कि स्वामी जी के जो योग में आया ना वो हरिभगत अपना जो हरिभगत है वो योगी बाबा के संबंध में आ गया ना, राइट हैंड साइड है वो योगी बाबा है, योगी बाबा के जो संबंध में आ गया ना उसका हमको माइनस पॉइंट देखने का अधिकार नहीं। महाराज ने क्या बताया कि जो योगी बाबा के संबंध में आ गया उसका माइनस पॉइंट, उसका अवगुण अभाव अवगुण हमको देखना नहीं है, बराबर है। तो हमको कभी कोई हरिभगत अपना सत्संग में आता होगा, कोई पान के गल्ले पे दिख गया, कोई होटल में दिख गया गलत करते हुए, तो हमको ये कभी नहीं देखना है कि ये क्या कर रहा है, हमको उसमें से गुण लेना है, उसके जीवन में गुण क्या है वो हमको लेना है, अभाव गुण नहीं देखना किसी का। नहीं तो क्या है ना महाराज कभी खुश नहीं हो गए हमसे। महाराज ने बोला है कि हमारा हरिभगत में कोई अभाव गुण जो है इन्हें अक्षरधाम में एंट्री नहीं, तो भी अपना हरिभगत का माइनस पॉइंट देखेगा उसको अक्षरधाम में एंट्री नहीं। अक्षरधाम में एंट्री अगर होना है तो हर एक भगत में से गुण लेना है, सिर्फ केवल गुण। और गुण लेने से क्या होता है, महाराज ने लिखा है वचनामृत में, गुण लेने से जीव ब्रह्मरूप होता है। तो हमें सभी अगर हरिभगत में से क्या लेना है, गुण लेना है। गुण लेना भी एक विवेक है कि एक हरिभगत था, ऐसे ही उसके साथ प्रसंग किया स्वामी जी ने कि उसका थाली खाली रखा, तो हरिभगत कंप्लेंट किया स्वामी जी को, स्वामी जी मैंने थाली में कहीं पीस्યું જ નથી, मतलब कुछ भरोसा ही नहीं, थाली तो खाली है। तो महाराज ने अभी प्रसंग में समझाया कि अपना थाली तो खाली हो ही नहीं सकता है। तो बताया कैसे महाराज, तो बाद में महाराज ने बताया कि ये जितने भी बैठे हैं हरिभगत सब में से एक एक गुण लेगा तो तेरा थाली खाली रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बराबर है। सब में से एक एक गुण लेगा, जैसे तू सब में से एक थाली में सबकी थाली में से एक चीज लेगा तेरा थाली भर जाएगा, वैसे ही जीवन में अपने अंदर एक भी गुण ना हो लेकिन सब में से एक गुण लोगे तो आपके जीवन में गुण ही गुण रहेंगे, बराबर है। तो हमारे जीवन में कैसा है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि इसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर वो दोष है, ये फलाना ऐसा किया होता, ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो अच्छा रहता। हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, इसने ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो अच्छा रहता था, इसने ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो अच्छा रहता, बराबर है। लेकिन हम लोग उसमें से अगर गुण लेंगे ना तो काफ़ी आगे निकल सकते हैं। वैसे एक प्रसंग है कि एक अपना स्वामी जी का भी ऐसा एक बार ऐसा हुआ था। अभी अपने को तो सत्संग में कैसा रहता है कि यहाँ की सभा में भी कोई ना कोई किसी को फॉलोअप करता होगा, जो नया आया होगा उसको सभा में आने के लिए फॉलोअप करता होगा, बराबर है। भाईंदर में भी सभा में फॉलोअप करते, किरण भाई फॉलोअप करते कि આપણે स्वामी जी अपने सभा में आवा છે, बराबर। तो एक दूसरे को फॉलोअप करते। एक समय पे स्वामी जी जो थे उसको जो उनके
अब जो अगेंस्ट वाले रहते ना कुछ लोग, वो चाहते थे कि स्वामी जी मंदिर में आए नहीं, सभा भरने में नहीं, सभा भरने को ना आए, तो स्वामी जी को बहुत मार मारा। कुछ वहाँ के गुंडे लोग थे ना कि स्वामी जी मंदिर तक ना पहुँच सके, तो उनको है ना बहुत मार मारा स्वामी जी को। लेकिन फिर भी ना महाराज हरिप्रसाद स्वामी जी जो है लेफ्ट हैंड साइड जो बैठे हरिप्रसाद स्वामी जी, इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया योगी बाबा को कि मुझे ऐसा मार मारा, ऐसा कुछ लोगों ने, वो उन्होंने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे ऐसा मार मारा। बाद में से पता चलता है कि स्वामी जी को किसी ने मार मारा, बराबर है। इतना मार मारने के बाद भी स्वामी जी कैसे भी जैसे तैसे करके स्वामी जी मंदिर में पहुंचे और सभा भरा, बराबर। हमको तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमको कोई ऐसा सभा में आते वक्त हमको कोई मारेगा कि सभा में मत जा, ऐसा वैसा, बराबर है। अपने को उल्टा प्रेम से हमको वेलकम किया जाता है, हमको इन्विटेशन दिया जाता है, व्हाट्सअप के ऊपर हमको मैसेज आता है कि आप सत्संग में आओ, हमको फ़ोन किया जाता है, फॉलोअप करते हैं, बराबर। तो हमें तो सभा सत्संग में आना ही है, बराबर। तो ऐसा ही एक हरि भगत रहता है, एक हरि भगत है, उसको हटपुत्री करके कार्यकर्ता लोग ऐसा करते थे इसको जानबूझ के। स्वामी ने ऐसा बताया था कि इसके अंदर कितना निष्ठा है, अपन देखते हैं। तो महाराज उसके जीवन में ऐसा प्रसंग रखते हैं, लेकिन वो फिर भी निष्ठा रख के फिर भी आने का सत्संग में, बराबर। उसको नाम से नहीं बुलाने का, ऐसा उसको अपमान करना, लेकिन फिर भी वो निष्ठा रख के सत्संग में आने का। और एक ऐसा वक्त आता है कि महाराज फिर उनको साक्षात दर्शन देते और बोलते कि बेटा હવે તું જીવનમાં પાસ થયો કહેવાય, ખરેખર તારી નિષ્ઠા પાકી કહેવાય, કે તું કેવળ ખાલી પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાર્થના નતો કરતો કે મારા જીવનમાં તમારી નિષ્ઠા પાકી कर दो। तो हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं ना, तो महाराज हमारे जीवन में परीक्षा भी रखते हैं कि सचमुच में तेरे में निष्ठा में पक्की है कि नहीं महाराज के ऊपर, बराबर है। ऐसा ही एक प्रसंग है कि विवेक का प्रसंग है कि हमारे पहले तो ये प्रसंग के ऊपर एक बोलने जाता हूँ, बाद में उसके बाद पहले बात करते कि हम लोग जो हमारे घर में रहते हैं ना, पहले क्या होता है, हम लोग सचिन, जैसे क्रिकेटर का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक सचिन तेंदुलकर जो है उसको अगर मैच खेलने जाना है तो पहले क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, बराबर। तो हम लोग को बाहर के जगत में अपने को हम लोग बोलते ना कि हमको रिस्पेक्ट चाहिए, बराबर। तो एक इंग्लिश में कहावत है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, बराबर। तो वैसे ही सचिन तेंदुलकर मैदान में खेलने जाएगा तो पहले क्या करेगा, वो नेट प्रैक्टिस करेगा, बराबर। तो हमको पहले कैसा है मालूम है, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए कि विवेक कब आ सकता है, वाणी में संयम कब रख सकते हैं। हमको अपने घर से पहले वाणी में संयम रखना है। ये यहाँ पे हम लोग तूता करके बात करते ना कि मम्मी तू ये पानी का गिलास दिखती है मुझे, बराबर। तो जो तू वो करके बोलते ना, वो बहुत गलत शब्द है। आप करके बात करने का, अभी बात इतना छोटा सा लगेगा, लेकिन ये छोटा सा बात है ना, ये बहुत जीवन में आपको बहुत मतलब इतना इसका इफेक्ट आएगा ना आगे जाके कि आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अभी अपने को कभी कभी और फील होता है, अपना कोई क्लोज फ्रेंड रहेगा ना तो अपन उसको तू करके ही बात करेंगे। ऐसा बहुत होता है कि हम लोग का कोई क्लोज हो गया रहेगा तो उसको तू करके बात करेंगे, क्योंकि उसको जैसे जैसे आप करके बात करना चालू करेगा ना, उसको भी थोड़ा अंदर से अच्छा लगेगा आप करके बात करोगे तो। घर में भी आप अपने मम्मी पापा से आप करके बात करोगे ना तो थोड़ा फर्क आएगा। लेकिन ये कैसा है, ये घर से शुरुआत करोगे ना तो आप फिर बाद में अपने सभा सत्संग में आप करके बात करना चालू करोगे, फिर सभा सत्संग में इसका प्रैक्टिस में आएगा ना। इंसान का स्वभाव है ना, ऐसा बोलते हैं कि उसको हैबिट में लाना पड़ता है, कोई भी चीज़ है ना हैबिट में लाना पड़ता है। तो फिर वो हैबिट में अगर आ गई ना, इसके बाद फिर आप ऑफिस में भी आप करके बात करोगे, मतलब सब जगह पर रिस्पेक्ट देके बात करोगे ना, तो फिर आपको खुद अंदर से आपको ऐसा रियलाइज होगा कि पहले जो मुझे रिस्पेक्ट जो मिलती नहीं थी सभा में, सत्संग में या मेरे ऑफिस में, कलीग्स में, तो अभी कितना चेंज आया कि सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देके बात करते हैं, बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने सबको रिस्पेक्ट दिया, इसके लिए आपको भी रिस्पेक्ट देनी, बराबर है। तो ऐसे ही रिस्पेक्ट कोई किसी को नहीं देता है। ऐसा ही एक प्रसंग है, एक राजा का दरबार होता है, राजा का एक दरबार होता है, उसमें दीवान होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक असिस्टेंट होता है, कोई जैसे अपना पीएम होने दो, सीएम होने दो, उसका एक असिस्टेंट होता है, बराबर। एक राजा का भी एक दीवान होता है। वो दीवान की ना राजमहल में कोई इज्जत ही नहीं होती है। अभी वो दीवान सोचता है कि मेरी इज्जत मैं कैसे बढ़ाऊँ महाराज, मतलब अब राजमहल में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाऊँ, ऐसा क्या करूँ कि इज्जत मेरी बढ़े। तो वो रास्ते में जाते रहता है, रास्ते में जाता है ना तो एक दुकान होती है, वो बुद्धि बेचने वाली दुकान होती है। अभी वो सोचता है ये बुद्धि बेचने की दुकान कैसी है, तो अजीब बात है, बुद्धि भी कोई बेचता है। तो बोलता है ये क्या बुद्धि बेच रहे, बोलता है हाँ बुद्धि बेच रही, तुमको कितने की चाहिए। तो बोलता है ये सोने की है, वीटी है, सोने की वीटी है, इसका कितना आएगा। बोलता है इसका 1.25 लाख रुपया तक आएगा सोने की वीटी का बेचेंगे तो एक काम करो 1.25 लाख रुपये की बुद्धि दे दो मेरे को, बराबर है। बोलता है ठीक है, थोड़ा कान और करो, मतलब काम थोड़ा इस तरफ लाओ बाजू में। तो उसको बोलता है कि अब से तुम्हारे पास जो भी आएगा ना, हाँ सबको मान सम्मान देने का, सबको हंस के स्माइल करने का और हाथ जोड़ के उससे प्रणाम करने का। तो बोला ठीक है, लेकिन इतनी सी बुद्धि। बोलता हाँ ये बुद्धि है, संभाल के रखना, किसी को देना मत। बोला हाँ ठीक। जाता है, राजा का लड़का जो होता है वो उसका सवारी निकलता है और घोड़े पे रहता है राजा का लड़का। सवारी आती रहती है,
सवारी आती है तो देखता है कि राजा का लड़का घोड़े से नीचे उतरता है, तो दीवान जाता है उसकी तरफ जाता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और हार जो है उनके गले में पहनाता है और उसको हल्के से स्माइल देता है। तो जो महाराज का लड़का होता है वो काफ़ी खुश होता है। राजा का लड़का खुश होता है और कुछ समय जाता है। कुछ समय जाने के बाद ऐसा होता है कि राजा की मृत्यु हो जाती है। तो वो प्रजा को पूछता है कि जो लड़का होता है राजा का, प्रजा को पूछता है कि अभी तो मैं राजा हुआ ना। तो बोलते हैं हाँ, राजा का आप लड़का हो, आप ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो अभी आप आपसे राजा। तो अभी वो बोलता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बोलता है हाँ, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो अपनी पाग जो होती है वो पाग जो उतार के दीवान को पहनाता है और दीवान को पहनाता है और उसको राजा बनाता है। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? उसको पीयू का जवाब देता है कि ये राजमहल जो था ना, राजमहल, इसमें जितना इज्जत मुझे दीवान ने दिया ना, इतना इज्जत मुझे किसी ने नहीं दिया। कि जितना उसके अंदर विवेक था, जितना दासत्व था, बराबर है। तो वो जो चीज़ था ना, उससे मैं खुश हुआ। बाकी धन दौलत तो उसके पास बहुत थी, लेकिन राजा का लड़का किस चीज़ का भूखा था? प्रेम का भूखा था, बराबर है। जो विवेक किसने दिया उसको? विवेक दासत्व का स्वरूप किसने दिखाया? तो वो दीवान ने दिखाया। तो उसको पूरा राजमहल जो है उसको सौंपा जाता है दीवान को। तो इसमें से हमको सीखना क्या था? इसमें से सीखना था कि दासत्व का स्वरूप, दासत्व का विवेक था उसके अंदर, कि उसने दास भावे मतलब दास के भाव से उसने उसका मान सम्मान किया राजा के लड़के का, बराबर है। ये भी एक प्रकार का विवेक है, दासत्व का विवेक, कि लोगों को मान सम्मान देना, बराबर है। अपने सत्संग में सिखाया है महाराज ने कि हमें छोटा है ना अगर होना है तो सामने वाले को बड़ा करो, बराबर है, सामने वाले को बड़ा करो। और स्वामी जी ने क्या बोला है कि मैं तो भक्तों की चरण रख छूँ, मतलब बराबर है। तो हम तो स्वामी जी के सामने क्या आए थे? तो स्वामी जी के सामने कुछ भी नहीं है, बराबर। तो स्वामी जी खुद बोलते हैं कि मैं भक्तों की चरण रज हूँ, बराबर है। तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमको तो दासत्व दिखाना ही है और भक्तों के हमेशा गुण गाना है, उसका मान सम्मान करना है, बराबर। और एक प्रसंग है कि विवेक किसको बोलते हैं कि ऐसा है कि अपने से जो बड़े होते हैं, या अपने सभा के लीडर्स है, या अपने कोई कार्यकर्ता है, कि हम यहाँ पे अमित भाई है, बराबर, मनीष भाई है, कि हम किसी की सलाह लेने जाते हैं, बराबर है। तो सलाह लेना है ना, तो पहले तो एक बात हमेशा एक अंदर से मान लेने का कि अगर मैं सलाह लेने जा रहा हूँ, विवेक, ये भी प्रकार का विवेक है, समझा रहा हूँ कि मैं किसी से सलाह लेने जा रहा हूँ, तो पहले अपने आप को सरेंडर करना है, बराबर है, कि मुझे ये चीज़ करनी है। मान लो कि मुझे सीए करना है, बराबर है, तो मैं मनीष भाई से सलाह लेने जा रहा हूँ कि करना कि नहीं करना, बराबर है। तो मनीष भाई से सलाह लेने के वक्त पहले अगर मैंने निश्चय कर लिया हो कि मुझे सीए करना ही है, तो फिर मनीष भाई से सलाह नहीं लेने का मेरे को, कि मैंने खुद ही अपना डिसाइड कर लिया। तो खुद ही डिसीजन ले लिया, तो दूसरे को क्यों पूछना है? हाँ, दूसरे से अगर पूछने जा रहे हो तो दोनों ऑप्शन रखने का, या तो हाँ भी हो सकता है और या तो ना भी हो सकता है। फिर जब मैं डिसीजन लेने जाता हूँ और वो मुझे कुछ एडवाइस देते हैं या कोई भी बात कहते हैं, तो उसको पहले तो पूरा सुनने का, ना कि उसको हंस के इग्नोर कर देने का, तो वह उसका अपमान हो गया, बराबर है। तो अभी भी विवेक किसको बोलते हैं कि उसको ध्यान से, शांति से पूरा बात सुनना, और वो हमको जो भी उत्तर देते हैं उसके ऊपर अमल लाना। अगर अमल नहीं ला सकते तो क्या करने का? पहले स्वामी जी की धुन करने का कि स्वामी जी, मनीष भाई माने कि तू सीए नहीं करवा, बराबर। अभी ये बात मानने में अभी क्या होगा? मैंने मन में क्या डिसाइड किया, मुझे सीए करना है, बराबर, लेकिन मैं सलाह लेने गया मनीष भाई से, बराबर। अभी मनीष भाई ने क्या बोला, नहीं करना है, तो गेम हो गया, बराबर। अभी मन में तर्क वितर्क होने लगा, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना। तो महाराज को धुन करने का उस वक्त, हे महाराज, हे स्वामी, स्वामीनारायण 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 धुन करके फिर महाराज अपने को उसके लिए बल देते हैं कि भाई क्यों नहीं करने बोला होगा, बराबर। तो ये होता है कि अपने से जो बड़े होते हैं ना, उसकी सलाह लेके करने का कोई भी चीज़ ऐसा। तो ये उसको भी विवेक बोलते हैं। अगर उन्होंने हमको कुछ करने के लिए बोला होगा ना, तो उसमें भी महाराज रह के बोल के गए होंगे, ये मान के चलने का कि उन्होंने उसके अंदर भी प्रभु स्वामी महाराज का रूप है। अपने यहाँ पे जितने भी हरिभक्त हैं ना, सबके अंदर प्रभु स्वामी महाराज का रूप है, ये मान के चलने का। अपने अंदर हमने एक चीज़ देखा होगा, लौकिक जगत में हम जाते तो कोई किसी को पैर पड़ता है क्या? चिंतन भाई, हम लोग लौकिक बाहर की दुनिया में हम लोग किसी को ऐसा कोई डायरेक्ट कोई पैर तो नहीं पड़ता, बराबर। लेकिन अपने सभा सत्संग में अंदर कोई छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, कोई नया रहेगा, कोई पुराना रहेगा, कोई सीनियर रहेगा या कोई जूनियर रहेगा, हम लोग सबको पैर पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे का कारण यही है कि हम सबके अंदर प्रभु स्वामी महाराज का स्वरूप देखते हैं, इसके लिए हम इसको पैर पड़ते हैं। प्रभु स्वामी महाराज राइट हैंड साइड पे जो है, उनको हम लोग लाइव साक्षात भगत के अंदर हम लोग उनका दर्शन करते हैं, इसके लिए हम लोग उसके अंदर पैर पड़ते हैं, बराबर। तो कभी भी अपना भक्त कोई भी सभा में आता है तो ये मान के चलने का प्रभु स्वामी महाराज है, और ये प्रभु स्वामी महाराज है तो ये जो सभा है यही अक्षरधाम है, ये मान के चलने का। ये जो सभा है यही अक्षरधाम है, ये मान के चलने का। एक बार ऐसा हुआ था, प्रभु स्वामी महाराज को पूछने में आया था क्या महाराज हम लोग को अक्षरधाम, यहाँ पे जो जितने भी आए हैं सबको अक्षरधाम की प्राप्ति होगी कि नहीं?
तो महाराज ने उंगली उठाई नहीं, सब लोग ने उंगली उठाई, महाराज ने उंगली नहीं उठाई। तो महाराज ने बाद में उनका उत्तर दिया। तो महाराज ने उसका उत्तर क्या दिया बताया मालूम है? कि हम जहाँ पे बैठे ना यही अक्षरधाम है, अक्षरधाम में जाना नहीं है, हम लोग अक्षरधाम में ही बैठे हैं। ऐसा कि यहाँ पे जो आ गए ना महाराज के संबंध में वही अक्षरधाम है, बराबर है। तो ये जो हम लोग एक दूसरे को पैर पड़ते हैं ना, वो भी एक प्रकार का विवेक है, बराबर है। जैसे कि हम लोग ने इसमें देखा था कि भगवान गणेश और कार्तिकेय जो होते हैं, बराबर, उनके बीच में स्पर्धा लगी रहती है, बराबर। कार्तिकेय क्या करता है? पूरी दुनिया की परिक्रमा करता है। गणेश जी क्या करता है? सिर्फ अपने माँ बाप की परिक्रमा करता है। उसमें से हमको क्या सीख मिली? कि जो विश्व है, विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं, वो विश्व की परिक्रमा उसके माँ बाप ही है। तो हमें किसकी परिक्रमा करनी है? हमें दुनिया की परिक्रमा नहीं करनी, हमें सिर्फ प्रभु स्वामी महाराज की परिक्रमा करनी है। कि उसके राजीपा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्रभु स्वामी महाराज के राजीपा के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम उसके राजीपा के लिए एक ही चीज़ करना है कि सबसे पहले तो हमको सभा सत्संग में आना है, वाणी वर्तन विवेक में संयम रखना है। स्वामी जी ने कहा है कि जिसके जीवन में प्रथम 16-18 का पालन है, उसके जीवन में कभी प्रसंग बन ही नहीं सकता है। प्रथम 16 यानी अंतःकरण का विवेक, यानी जिसके जीवन में वाणी वर्तन विवेक है, बराबर है। और प्रथम 18 यानी इंद्रियों का विवेक, कि जिसके 5 सेंसेस जो है पॉजिटिव है, बराबर है। और जैसे इसमें से तुमको प्रथम 18 का एक स्वामी जी का प्रसंग है कि हरे प्रसाद स्वामी जी जो है एक बार मंदिर के अंदर बर्तन घिसने की सेवा करते रहते। एक संत बोलते ऐसा कोई सूरवीर है जिसकी नज़र वो बहनों की तरफ गई ना हो, दूसरी तरफ दूर थोड़ा सा दूरी पे बहनों जो है बर्तन घिसते रहते, बराबर। तो हरिप्रसाद स्वामी जी जो है, जिनका नाम था, पहले दीक्षा देने के पहले उनका नाम प्रभुदास था। तो प्रभुदास जी ने ऐसा सहजता से उंगली उठाया और मुंडी नीचे रखे, बराबर। तो बोलता है कि मेरा नज़र नहीं गया। तो स्वामी जी ने अपने जीवन में क्या किया? अपने जीवन में हमको पहले सिखाने के पहले कुछ जीवन ऐसा जिया है कि उनका आँख जो है कहीं गलत तरफ से गलत जगह पे जाता भी नहीं, बराबर है। तो अगर हमारा आँख गलत जगह पे जाएगा तो हमारे माइंड में वो गलत चीज़ें घूमेगी, बराबर है। एक भगत था, खानगी करने आया था स्वामी जी के। तो स्वामी जी मेरे को 75% चाहिए डिस्टिंक्शन, तो ही मैं मानूँ कि मैं सभा में आया हूँ, वो सही है, सभा जगह जो प्लेस है वो सही है, मैं मानूँ ऐसा, बराबर है। तो स्वामी जी ने उसको एक कंडीशन दिया कि अब से लेके 1 महीना के बाद तेरा जो परीक्षा है उसमें तेरे को टीवी नहीं देखने का, बराबर है। ऐसा उसको एक कंडीशन दिया कि अब से लेके 1 महीने तक कोई टीवी नहीं देखने का, और ना ही कोई बाहर कोई दोस्त बुलाए क्रिकेट विकेट खेलने के लिए, कोई खेलने नहीं जाने का, अपना 8 घंटा पढ़ाई रोज का होना चाहिए। तो बोला ठीक है स्वामी। 1 महीना होता है, परीक्षा देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, उसको आता है 74%। तो जो रहता है गुस्सा हो जाता है बहुत, ये 75% की बात किया था, 74% कैसा आया? जाता है स्वामी जी से बात करता है, स्वामी आपका कंडीशन ये जो वचन था वो पूरा नहीं हुआ, 1% कम कैसा आया? डिस्टिंक्शन से 1% से मैं चूक गया। स्वामी जी बोला तेरे को पता है तू बाजू के घर पे गया था पोहा का डिब्बा लेके? बोला हाँ। तो तभी वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था? बोलता हाँ। तो वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में आया था? हाँ। तो वहाँ पे क्रिकेट देखा था? बोलता हाँ स्वामी, इंडिया फाइनल में हो तो क्रिकेट कैसे नहीं देखूंगा मैं, क्रिकेट तो देखना बनता है। तो बोलता है हाँ, तो क्रिकेट देखा था ना, उसी का 1% कम हो गया, बाकी मैंने तो 75% का गारंटी दिया था, बराबर। तो स्वामी जी के आज्ञा में पालन करना वो भी एक आज्ञा का विवेक है। अगर हम आज्ञा का विवेक नहीं रखेंगे तो हम फिर स्वामी जी को ब्लेम नहीं कर सकते, बराबर है। ऐसे ही एक हरि भगत होते हैं, उसको भक्ति स्वामी, कौन से तो संत है, मेरा एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम है, उन्होंने उसको ऐसा बताया था कि उसको मर्सिडीज ऐसा कुछ चाहिए था, गाड़ी चाहिए था। तो उन्होंने ऐसा बताया कि है ना, तो 6 महीना है ना ये मंदिर का प्रदक्षिणा, वहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ पे वो मंदिर के स्वामीनारायण का मंदिर के इधर रोज़ सुबह 4 बजे नहा के 6 महीना प्रदक्षिणा करना, तेरे को तेरा मर्सिडीज मिल जाए। अभी वो क्या सोचता है, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, ऐसा सोचता है। 4 दिन जोश में करता है, 5वें दिन भी छोड़ देता है, बोलता है क्या करने का, सुबह 4 बजे उठने का, फिर ये प्रदक्षिणा करने का, ऐसा करने से मर्सिडीज कैसे आएगा? उसको निष्ठा के ऊपर कचास, उसकी निष्ठा में बड़ा डाउट आ जाता है कि ये कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, कौन ऐसा मर्सिडीज आ जाएगा तो हो गया फिर। तो वो बोलता है जाने दे, छोड़ो, नहीं करने का ऐसा प्रदक्षिणा वगैरह। 6 महीना हो जाता है तो शायद मैं भी शायद हरिप्रसाद स्वामी जी थे, हाँ। तो हरिप्रसाद स्वामी जी वापस मंदिर की तरफ आते, मंदिर की तरफ आते, भगत अपनी मर्सिडीज क्या है? स्वामी ने ऐसा पूछते, भगत अपनी मर्सिडीज क्या है? तो बोलते मर्सिडीज क्या थी आवे स्वामी, आई थे प्रदक्षिणा कर। तो बाद में जो साथ में रहने वाले भक्ति स्वामी ने वो बोलते कि महाराज साधु हरिप्रसाद अगर जो कहने कि 6 મહિના પ્રદક્ષિણા કરવાથી મર્સિડીઝ મળશે તો મળશે, પછી એના વાણીમાં આપણે જે વચન આપેલું હોય એમાં ચૂકવાય નહીં। સ્વામીજી અગર
गलती से भी बोल दिया कि ये होगा तो होगा, उसके बाद पे विश्वास रखने का, बराबर है। तो स्वामी जी हमेशा जो भी हमको बोलते हैं ना कि वाणी वर्तन विवेक से अपना जीवन में कभी प्रसन्न नहीं बनेगा, प्रथम 16 और 18 का पालन करने से जीवन प्रसन्न नहीं बनेगा। तो 16 और 18 के ऊपर पालन करना है वचनामृत के हिसाब से। फिर राजा रहता है और राजा के दरबार में दीवान होता है। वो उसके यहाँ पे ऐसा होता है कि चोर होता है, चोर आता है तो उसको बोला जाता है सभा भरता रहता है, चोर सभा भरता रहता है। तो यहाँ पे सब लोग कंठी धारण करते रहते हैं। तो बोलता है यार ये कंठी मैं धारण नहीं करूँगा। बोलता है क्यों? तो बोलता है यार मेरा तो प्रोफेशन चोरी है, तो मैं कंठी धारण कैसे कर सकता हूँ? उसमें तो कंठी में धारण करने में वचन लिखा हुआ है, दारू मांस चोरी जुगाड़ छोड़ना पड़ेगा, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। तो साथ में रहने वाले संत बोलते हैं काम करना, चोरी तेरा जारी रखना, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, उसकी जगह पे सच बोलना। तो बोला ठीक है सच बोलूँगा। बोला ठीक है। इसके बाद जाता है तो जो सैनिक खड़ा रहता है दरवाजे के ऊपर, वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है चोरी करने जा रहा हूँ। बोलता है ये पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है जा अंदर जा। राजा के पास चाबी मांगता है तिजोरी का। तो महाराज अपने मैंने तिजोरी की चाबी आपको ना कि ऐसा चीज़ चोरी तिजोरी का चाबी कौन मांगता है? लेकिन अभी शायद उसको ऐसा लगा रहेगा, शायद ये जो अकाउंटेंट रहेगा ये कुछ हिसाब किताब करना रहेगा, तो तिजोरी का चाबी भी दे देता है। अभी तिजोरी खोल के 6 लोग होते हैं और टोटल 6 लोग होते हैं, मतलब 5 लोग होते हैं, 5 चोर होते हैं। और राजा बोलता है एक काम करना, मैं भी कोई पेटी उठाने में मदद करता हूँ तुम लोगों को, बोलता है। तो बोलता है चलो 6 जन है तो 6 पेटी तो उठा लेगी, बाकी 10 पेटी तो नहीं उठा पाएगी। 10 पेटी होती है सोने की मोहर की, 6 पेटी उठा लेते और चोरी हो जाती है। उसके बाद दीवान बोलता है कि चोरी हो गई। तो बोलता है क्या बात करते हो, चोरी हो गई? बोलता हाँ सब चोरी हो गया। तो बोलता है एक काम करे, मैं ऐसा घोषित कराओ कि जो भी चोरी किया है वो चोर सामने से आके बोले तो उसका डबल दुगना गुना मैं उसको बख्शिश में दूंगा और उसको माफ़ कर दूंगा। तो बोला ठीक है। ऐसा उसको मालूम था कि जो चोर जो सत्य बोलने वाला चोर है ना, वो खुद सामने से आएगा और चोरी मानेगा, और ऐसा ही होता है। तो राजा पूछता है तूने चोरी की थी? बोलता हाँ चोरी की थी मैंने। कितना पेटी चोरी किया? बोलता 6 पेटी। ऐसा कैसा हो सकता है, या तो 10 पेटी था। बोलता नहीं इतना झूठ भी नहीं बोलता हूँ मैं, सत्यवादी चोर है। बोलता अच्छा 6 पेटी चोरी हुई। बोला अच्छा। एक काम करते हैं दीवान के घर पे रेड पड़वाते हैं। दीवान के घर पे जाते 4 पेटी निकलती है। तो दीवान खुद चोरी किया रहता है 4 पेटी। तो बोलता है तेरे से तो अच्छा ये चोर अच्छा है। बोले चोरी किया तो सच तो बोल रहा है। तो उसको मैनेजर बना देते। बोले आज से ये दीवान। ऐसा ये भी होता है एक सत्य का विवेक। लेकिन ऐसा ये तो कॉमेडी था, लेकिन एक इसमें से सीखना ये था कि सत्य का विवेक, सत्य बोलने से भी कितना फ़ायदा होता है, बराबर है। और एक लास्ट प्रसंग बोल के मैं अपनी सेवा पूरी करूँगा कि हम लोग ने गुरु पूर्णिमा में देखा था। गुरु पूर्णिमा में हम लोग ने एक प्रसंग देखा था कि बहुत सारे संत लोग जो होते हैं, वो संत लोग जाते हैं अपने एक रास्ते से जाते होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे गुंडे होते हैं। तो बहुत सारे संत लोग को मारते हैं और उनमें से मालूम पड़ता है कि जो गुंडे लोग हैं उसका एक लीडर होता है, और वो लीडर जो होता है उसको जो है ना बच्चा नहीं होता है उसको। तो ये बात मालूम पड़ती है संतों के लीडर को पता चलती है। तो वो ऐसा संत लोग को बाकी के संत लोग को बोलता है कि आपने एम करो कि आपने एना माटे है ना, तो इसके लिए मतलब धुन कराते स्वामी जी का। तो बाकी संत लोग बोलते हैं पागल है क्या, इतना एक तो अपने को इतना मारा, बराबर है, और इसी की रक्षा के लिए इसको बच्चा हो करके धुन करें हम लोग। बोलता है हाँ हम लोग उसके लिए धुन करेंगे। हम लोग को महाराज ने जैसे के साथ पैसा करना नहीं सिखाया, बराबर है, कि वो गलत है तो हम भी उसके साथ में गलत हो। तो हे महाराज हे स्वामी करके धुन करते સ્વામિનારાયણ કે આપણા જે આ ભગત છે એમને ત્યાં દીકરો થાય એના માટે કંઈક લીલા કરો। तो स्वामी जी लीला करते हैं और उसके घर पे बच्चा होता है, और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम लोग ने संतों को इतना मारा, फिर भी ये संत लोग ने हमारे लिए हिंसा नहीं किया, और उसके उल्टा किया, विपरीत ये किया कि हमारे हित के अंदर कि हमें मुझे बच्चा हो उसके लिए प्रार्थना किया, और स्वामी जी ने देखो कैसा चमत्कार किया कि मेरे यहाँ पे आज बच्चा हुआ, बराबर है। तो उन लोगों ने क्या किया, संतों ने ये प्रेम का विवेक रखा अपने जीवन में, बराबर है। और जिससे ये होता है कि जो गुंडों का लीडर होता है उसको प्रायश्चित होता है कि मैंने गलत किया ये मार के, ये ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बराबर है। तो वो लोग भी बाद में उनको पश्चाताप होता है और वो लोग भी सभा सत्संग करना शुरू करते हैं, और वो लोग भी स्वामी जी के साथ में संतों के साथ में सभा सत्संग करने लगते हैं। तो ये होता है कि हमें जीवन में अपने विवेक रखना है और वाणी में संयम रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, बराबर है, बात छोटा सा रहता है अपने को, बराबर, समझो ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है टाइम पे, लेकिन छोटा सा प्रसंग बन जाएगा कि ना बोलने का
सामने वाले का पैर पड़ा या अपना पैर पड़ा, सॉरी बोलने में क्या है, बराबर। लेकिन कभी कभी होता है ना, एक दूसरे का अभिमान होता है, मैं बड़ा, उसको लगता है मैं बड़ा, हमको लगता है हम बड़ा, बराबर। तो कोई दोनों एक दूसरे से नहीं झुकते ना, तो फिर झगड़ा होता है, बराबर। तो वाणी में संयम रखने से क्या होता है, इसका भी पाँव पड़ा, अपने को सॉरी बोल देना था, ये वाणी में संयम रखोगे ना तो झगड़ा नहीं होगा, हम अपने टाइम पे ऑफिस में पहुँचेंगे, बराबर। तो गाली गलौज करके क्या मिलने वाला है इसमें, गाली गलौज करके क्या होगा, झगड़ा ही होगा, बराबर। तो वाणी में संयम रखेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और हम भी अपने जो डेस्टिनेशन है उन पे जगह पे पहुँचेंगे। तो आज के जीवन में हमें वाणी, वर्तन और विवेक, ये तीन को अगर पालन करना है तो सबसे पहले तो हमें एक ही चीज़ करना है कि सभा सत्संग में आना है, बराबर है। दूसरा कि यहाँ पे जो भी आया हुआ हरि भगत है, बराबर, उसके अंदर सबके अंदर हम लोग स्वामी जी का स्वरूप देखें कि इसके अंदर स्वामी जी का स्वरूप है, प्रभु स्वामी महाराज साक्षात है, और उस हिसाब से उनका मान सम्मान करें। और आज के जीवन में हम स्वामी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे महाराज, हे स्वामी, કે દરેક હરિભગતના અંદર અમે હંમેશા ગુણ લઈ શકીએ, અમારા વાણીમાં સંયમ રાખી શકીએ, અમારા વર્તનથી અમે ક્યારેય ચૂકે નહીં, અને દરેકમાંથી અમે ગુણ લઈએ અને ક્યારેય કોઈનામાં અભાવ ગુણ ન જોઈએ, અને આજ પછીથી અમે ક્યારે પણ સત્સંગમાં આવીએ તો અમે એ વસ્તુ અમે ધ્યાનમાં રાખશું કે સમય પર આવી શકીએ, એ માટે અમને બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપજો। એ જ પ્રાર્થના સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે।